Good morning, students. So, today we will start our new chapter, that is simple equation. Last week I have sent you one video explaining the basic concepts of simple equation. Okay, like how to form or how to frame the equation, what do you mean by equality, LHS, RHS. Okay, so today we will do this chapter from our textbook. Okay, so equation is what? Just let us revise it. Equation means equality. Okay, means your LHS, the value in the left hand side should be equal to the right hand side. Okay, and equation consists of constant and variable. Okay, constant क्या होता है? Numerical terms. That numerical terms is known as constants. Okay, and variable means x, y, z, all the alphabets which we use in the equation. Okay, so let's start our exercise 4.1. Okay, so our first question is complete the last column of the table. So a table has been given in this question. क्या है उसका first column? Serial number, equation, value, and then you have to say whether the equation is satisfied or not. Means you have to put this value. Okay, the value is given here, that is x is equals to 3. So you have to put this value in this given equation, and if LHS is equals to RHS, then only you will say that yes, this value satisfied the given equation. Okay, मतलब हम कोई वैल्यू डालते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू हम वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड उसी जगह पे रखते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन है LHS और RHS दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि यस दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज द रूट और वैल्यू ऑफ द इक्वेशन. ओके, सो लेट्स सी x plus 3 is equals to 0. यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखनी है. दैट you will do in your notebook. Okay, proper you have to do the proper calculation. x की जगह क्या रखूं मैं यहाँ पे? You will write putting the value of x is equals to 3. Okay, तो यहाँ पे मैं रखती हूँ 3 plus 3 is equals to 0. है ना, हमारा इक्वेशन ये है. x की जगह मैंने क्या रखा? 3. अब देखो यहाँ पे 3 प्लस 3 क्या होता है? 6. 0. अब यहाँ पे हमारा LHS क्या है? 6 है, बट RHS हमारा क्या है? 0. आर दे इक्वल? नो. सो व्हाट वी विल राइट? सिंस 6 is not equal to 0, so LHS is not equal to RHS. Okay, so here in this column you will write no. Okay, means this value is not satisfying the given equation. Okay, likewise you will solve other parts. Now this you will have to try. Okay, till 5th. Okay, till 5th it is simple. You have to just put the value and you have to do simple addition and subtraction. Okay, now we will see 6th one. So in 6th part we will see 5x equals to 25. Okay, so here we will have to put 0 as the value of x. 5x है, 5x means 5 is multiplied by x. So that you will have to remember if you shift any number or variable. Okay, if you shift any number from LHS to RHS or RHS to LHS, its sign will be change. Okay, like अगर हमारा यहाँ पे अगर प्लस होता तो इक्वल्स टू के बाद जाने के बाद क्या होता? वो माइनस में आ जाता. ओके, तो यहाँ पे हमारा दोनों क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर जब जाएगा तो क्या हो जाता है? डिवीजन. ओके, बट वो अभी हमें नहीं करना, हमें बस यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है. तो 5 मल्टीप्लाई बाय x क्या है? 0. 25. 5 into 0 0 and this is 25. Are they equal? No. Means हमारा यहाँ पे LHS is not equal to RHS. So therefore your answer will be, what will be your answer? No. No, the value, this is x is equals to 0 is not satisfying the given equation. ऐसे ही तुमको 8th पार्ट भी करना है, बिल्कुल सेम है. 9th पार्ट में m डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 2 है, तो m की जगह यू विल पुट -6. 3 1 3, 3 2 6, -2 हो जाएगा. -2 इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, -2 और 2 इक्वल होते हैं? नो.
है ना। अगर तुम देखोगे इंटीजर हमारे जो नंबर लाइन है -2 जीरो के पहले आता है और 2 होता है वो 0 के बाद आता है, मीन्स दे बोथ आर नॉट इक्वल। ओके, वी विल हैव टू कंसिडर द साइन ऑल्सो। तो हम क्या लिखेंगे, नो। ठीक है, तो दिस टेबल यू विल कंप्लीट बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। सो इन क्वेश्चन नंबर 2, check whether the value given in the bracket is a solution to the given equation or not. Means हमको जो यहाँ पे वैल्यू दी है n is equals to 1. So is this by putting this value r LHS is equals to RHS? So this we will have to check. Okay, means this value is satisfying this equation or not. क्या करेंगे हम, ये जो n की वैल्यू है हम यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो अब हमने रखा है यहाँ पे, देखो n की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी विल राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 1, ऐसे हमको लिखना है। फिर यहाँ पे 1 + 5 इक्वल्स टू 19। ठीक है, 1 + 5 क्या होगा, दे बोथ आर लाइक टर्म्स, सो वी विल डू एडिशन। 1 + 5 6 is equals to 9। अब is 6 equals to 19 इक्वल है दोनों, नो, मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, LHS is not equals to RHS, so therefore the value of n is not satisfying the given equation। ओके, हमको पूरा इस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा 7n + 5, मीन्स हम n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह -2 है, तो हम 7 × 7, n मतलब मल्टीप्लीकेशन में है, 7 × -2 + 5, तो मेरा हो जाएगा 7 × 2 14, -14 + 5, unlike terms you will do subtraction and then you will have to check if LHS is equals to RHS. So in this way you will have to solve question number 2, है ना। मैंने एक सॉल्व किया है, बाकी सब बिल्कुल इजी है, तुमको सिर्फ वैल्यूज रखनी है, सब में वैल्यूज दे रखी है, n की, p की, मीन्स इन शॉर्ट वेरिएबल की वैल्यूज दे रखी है, तुमको उन सबको वेरिएबल की जगह पे रख करके यू विल हैव टू सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक इफ whether LHS is equals to RHS or not. Okay, so in trial and error method हम क्या करते हैं, we put the value, जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू होती है, हम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, हम उसको लेके देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उसकी जो LHS और हमारा RHS वो हमारा इक्वल होता है, तो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ आवर इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल पुटिंग द वैल्यू ऑफ p as 1, 2, 3, 4 एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो पहले हम क्या लेते हैं, 1। ठीक है, पहले लिया p इज इक्वल्स टू 1। अब हमारा इक्वेशन देखो, 5 p की जगह मैंने क्या रखा, 1 + 2 17। ओके, 5 multiply by 1, 5 + 2 is equals to 17। 5 + 2 7 equals to 17, it is not equal, है ना, means p is equals to 1 हमारा, it is not the value of equation। now we will see second, p is equals to 2। अब हम वापस इस इक्वेशन में यहाँ पे p की जगह पे क्या रखेंगे, 2 + 2 is equals to 17। 5 2s are 10 + 2 17, 10 + 2 12 17, दे आर नॉट इक्वल। अगेन हमारा LHS हमारा RHS दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, p इज इक्वल्स टू 3। सो इन द गिवन इक्वेशन अब हम क्या करेंगे, p की जगह पे हम 3 रखेंगे। ओके, 5 3s are 15 + 2, 15 + 2 कितना हुआ, 17, है ना। अब यहाँ पे देखो हमारा LHS RHS की इक्वल है, दे बोथ आर सेम, है ना, दे बोथ आर 17, दैट मीन्स
अगर हमारा p की वैल्यू 3 होता है तो हमारा इक्वेशन जो होगा वो इक्वल होगा, मीन्स दिस वैल्यू इज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन. सो हियर यू विल राइट सिंस LHS is equals to RHS. Okay, so P is equals to 3 is the value of equation 5P plus 2 equals to 17, है ना. कि हमारा P जो हमने 3 रखा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है. ओके, तुमको सेकेंड जो पार्ट है बिल्कुल ऐसे ही करना है. 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4. उसमें तुम m को पहले 1 रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो. किसी एक वैल्यू पे तुम्हारा क्या होगा कि LHS और RHS दोनों सेम होंगे. यहाँ पे हमारा RHS 4 है, एक अकेले 4 है, तो तुम्हारा LHS भी एक पर्टिकुलर वैल्यू में क्या होना चाहिए, हमारा 4 आना चाहिए. जैसे हमारे यहाँ पे क्या था, 17 था, फिर मैंने यहाँ पे 3 रखा, तो क्या आंसर है 17 LHS में. ठीक है. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट. इन क्वेश्चन नंबर 4 राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मतलब अब हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमको उसका इक्वेशन फ्रेम करना है बाय रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द गिवन स्टेटमेंट. द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9. क्या बोल रहा है, सम मतलब प्लस ऑफ नंबर्स. कौन कौन से नंबर दे रखे हैं, x और 4, उसका क्या सम होना चाहिए, 9. तो हमने क्या किया यहाँ पे, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9, है ना, क्योंकि द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 आर 2 नंबर्स एंड द सम इज 9. तो हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन में, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9. ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे. Now see third one. Second one subtraction वाला है, that you will try by your own. See third one. 10 times a is 70. मतलब a का 10 times मतलब क्या होता है, हमेशा टाइम्स मतलब उतने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं ना नंबर को. तो 10 times मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय a, है ना. 10 मल्टीप्लाई बाय a is results 70. So in equation form what we will write, 10a is equals to 70. Now sixth one, 7 times m plus 7 मतलब m का 7 times क्या होगा, 10 times था तो मैं 10 इंटू 1 किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 इंटू m, है ना, प्लस 7 मतलब 7m में 7 और प्लस हुआ है, तो 7m प्लस 7 गेट्स यू क्या रिजल्ट देगा, 77. तो हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 7m प्लस 7 is equals to 77. So in this way you have to read the statement carefully and then you will have to frame the equation. Okay, so solve remaining parts of this question. Now in question number 5 we have to write the following equation in statement form. हमको equation दे रखा है, हमको वो statement form में लिखना है ना. तो देखो first क्या है, p plus 4 is equals to 15. p प्लस 4 मतलब क्या हो रहा है, सम हो रहा है, एडिशन हो रहा है. तो क्या लिख सकते हैं हम, द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज़ 15, है ना. तो इसके हमें सेंटेंसेस अलग अलग हो सकते हैं, इट कैन वेरी. सो इन दिस वे यू विल ट्राई अदर पार्ट्स. फिफ्थ वन, 3m डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 6. क्या लिख सकते हैं उसको, 3/5 of m, और you can write 3 times m divided by 5 gives 6, है ना. तो they can be more than one statement for one particular sum. Now sixth part is 3p plus 4 is equals to 25. मतलब 3 times p is added to 4 gives 25, है ना. तो यहाँ पे 3 times p plus 4 और when added to 4 gives you 25. ठीक है, इस तरह तुमको सॉल्व करना है. Now sixth part, set up an equation in the following case. तुम्हें पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है and then you will have to frame an equation. Okay. Irfan says that he has 7 marbles. कितने मार्बल, 7 मार्बल, more than 5 times the marble Parmeet has. मतलब परमीत के पास अगर मार्बल जितने भी होंगे, है ना, उसका 5 टाइम्स
5 टाइम्स प्लस 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स, है ना। सो इरफान कितने हैं 37 मार्बल। अब हमको इसको इक्वेशन में करना है। टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल। हमको परमीत के मार्बल नहीं पता तो हम उसको लेंगे एम। सी सॉल्यूशन पार्ट। नंबर ऑफ परमीत मार्बल कितना दिया हुआ है एम। सो इरफान की कितने, क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि इरफान इज हैविंग 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़, है ना। मतलब कि हमारे पास इरफान के कितने हैं मार्बल 5 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परमीत मार्बल प्लस 7, है ना। परमीत के पास जो मार्बल है उसका 5 टाइम्स प्लस 7, तो क्या होगा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय एम प्लस 7 इज इक्वल टू 37. सो 5m plus 7 is equals to 37. In this way you will solve the remaining part. Okay, you have to try to frame the equation by reading the statements which is given in the remaining part of question number 6. Okay students, so now we will start our next exercise 4.2. Okay, so before that I just want to tell you that all the questions in 4.2 is based on second method to find out the value of equation, and that is systematic method. Okay, we call it systematic method. हमने 4.1 में क्या देखा, ट्रायल एंड एरर मेथड, मीन्स वी वर पुटिंग वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 okay and so on in the place of variable to see that if LHS is equals to RHS or not on that particular value, okay, a constant you can say. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे like whatever we do in the LHS we will have to do or yes we will have to do that operation in the RHS also, है ना. Suppose कि यहाँ पे 3 plus x is equals to 12 है, ठीक है, ऐसा है. तो हम सिस्टमेटिक मेथड में क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 है, हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि LHS में सिर्फ वेरिएबल रहे और RHS में सारे कांस्टेंट रहे, ठीक है. LHS में क्या होगा, वेरिएबल, और RHS में सारे कांस्टेंट. तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम 3 से इसको माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे. ओके, तो क्या करेंगे, ये 3 के साथ हम -3 करेंगे, प्लस x तो ऐसे रहेगा. अब हमने इसमें से 3 सबट्रैक्ट किया है तो 12 में से भी 3 हम सबट्रैक्ट करेंगे. ओके, ठीक है. अगर देखो हमारे पास अगर जैसे तराजू दैट यू नो है ना, 2 है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम दोनों चीजें इक्वल है तो अगर हम एक में से कोई सामान निकालेंगे तो दूसरे में से उतना ही निकालेंगे ना, ताकि दोनों इक्वल रहे, ठीक है. तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, अगर हमने 3 यहाँ से सबट्रैक्ट किया है तो इधर से भी 3 सबट्रैक्ट करेंगे. 3 इट विल कैंसल आउट, इधर क्या बचेगा x, और 12 - 3 9 मीन्स योर x की वैल्यू क्या होगी 9. हमें इस तरह से पूरे 4.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं हमको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है. अगर हमारा प्लस में दिया है तो दूसरा जो इसका बिल्कुल सेम नंबर बट वो माइनस में होगा, ठीक है. अगर मल्टीप्लीकेशन में दिया है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा, अगर डिवीजन में दिया है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. मीन्स हमको कैंसल आउट करना है. कैंसल आउट कैसे होता है, ऑपोजिट या फिर अनलाइक साइंस होते हैं तब होता है, ठीक है. Okay, now we will see our first question of exercise 4.2. Give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. मतलब तुम जो भी यहाँ पे ऑपरेशन करोगे तुमको वो इन theoretically you will have to write it, है ना. जैसे कि अब देखो यहाँ पे x - 1 is equals to 0 है. अब हमें यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, यहाँ पे हमारे कांस्टेंट भी है, हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे हम, -1 में है तो इसके साथ हम +1 करेंगे, है ना. माइनस का ऑपोजिट क्या होगा, प्लस. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एडिंग +1 टू बोथ साइड्स, है ना, क्योंकि हम जो भी LHS में करेंगे हमको RHS में भी करना है, ठीक है. तो x - 1 + 1 0 - 1, ठीक है, 0 + 1 सॉरी हम ऐड कर रहे हैं ना. अब देखो -1 + 1
कैंसल आउट, x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस तरह से तुमको सॉल्व करना है। b हमारा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, प्लस 1 है तो उसमें तुम क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग -1। ओके, सब्ट्रैक्टिंग -1 फ्रॉम द बोथ साइड्स, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. So in this way you will solve question number 1. Question number 1 is easy that you can solve it. Now we will see question number 2. Question number 1 में हम क्या कर रहे थे, प्लस और माइनस में था। अगर प्लस में इक्वेशन में हमारा कांस्टेंट था तो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, और अगर हमारा माइनस में था तो हम उसमें ऐड कर रहे थे। अब हम सेकंड में क्या देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन में होगा, जब द कांस्टेंट इज इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म विद द वेरिएबल। यहाँ पे हमारा क्या है, 3l इज इक्वल टू 42। 3 और l क्या है, यू कैन राइट सिंपली राइट 3 मल्टीप्लाई बाय l इज इक्वल टू 42। मल्टीप्लाई है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, डिवीजन। ओके, मतलब हम इसमें से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसको, 3 को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइडिंग 3 फ्रॉम both sides. Okay, so 3 into L divided by 3 is equals to 42 divided by 3. ठीक है, 3 कैंसिल, यहाँ पे L बचा और ये 3 1 जा और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना बचा, 14. So your value of L is 14. So in B part कैसे दिया है, b डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6। हमारा कांस्टेंट है वो वेरिएबल के किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। डिवीजन का ऑपोजिट मल्टीप्लाई होता है, एडिशन का ऑपोजिट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ रखेंगे, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक साथ, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग, क्या है यहाँ पे, 1/2। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, b इंटू 1/2 इज इक्वल टू 6। 1/2 है ना, तो यहाँ पे हमको 2 को कैंसिल करना है, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स विद 2। ठीक है, तो अब मैंने b मल्टीप्लाई बाय 2/2 किया और 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 कैंसिल, b इज इक्वल टू 6 2 जा 12। तुमको इस तरह से डिवीजन वाले सॉल्व करने हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी f पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लीकेशन वाला था, सेकेंड पार्ट हमारा डिवीजन फॉर्म में था। अब f पार्ट हमारा क्या है, दोनों हमारे फ्रैक्शन नंबर्स है ना, ये डिवीजन z के साथ ये डिवीजन फॉर्म में है, एंड दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 डिवीजन में है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। हम सिर्फ इसको ही देखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको LHS में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चाहिए। दिस इज z है ना, z/3, हमको यहाँ पे सिर्फ z चाहिए, 3 नहीं चाहिए। ये हम जो यहाँ पे करते हैं, हम वही सेम ऑपरेशन हम RHS में करते हैं। ठीक है, तो हमको सिर्फ पहले LHS को देखना है। तो डिवाइडेड बाय 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग both the sides with 3, है ना, हमको 3 को कैंसिल आउट करना है, तो हमको z/3 मल्टीप्लाई बाय 3, इधर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 कैंसिल, z हुआ। अब 5 4 एंड 3 प्राइम नंबर है, 3 और 4 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, ये हमने सीखा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में, कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 3 और 4 डिवाइड नहीं हो सकते, मीन्स वी विल सिंपली मल्टीप्लाई 5 एंड 3। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 3 जा 15 और ये 4 1 जा 4। सो योर आंसर विल बी z इज इक्वल टू 15/4। सो इन दिस वे यू विल सॉल्व। Question number 3, it is same as 1 and 2 only.
तुमको बिल्कुल सेम वैसे ही करना है बेटा। सी फर्स्ट क्वेश्चन 3n-2 इज इक्वल्स टू 46 है ना। हमको कांस्टेंट, हमको वेरिएबल ही LHS में रखने हैं, RHS में हमको सभी कांस्टेंट रखने हैं। तो क्या करेंगे, -2 पहले हम हटाएंगे है ना, जो हमारा पहले जो सब्ट्रैक्शन वाला है उसको हटाएंगे। तो क्या करेंगे, 3n-2 + 2 इज इक्वल्स टू 46 + 2। ओके, तो -2 हट जाएगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे, वी विल डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 है ना, 2 कांस्टेंट है, एक 3 है और एक 2 है। तो 2 कैसे हटेगा, माइनस का साइन है उसके सामने, तो +2 डालेंगे है ना, तो कैंसिल हो जाएगा। और 3n है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है में है, तो हम डिवाइड करेंगे तो इट विल बी कैंसल आउट। सो n इज इक्वल टू वॉट एवर यू गेट द आंसर आफ्टर एडिंग एंड डिवाइडिंग द 46 by 3। ठीक है, यू विल हैव टू डू द सेम इन B, C and D। ठीक है, C में क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन में 20 है तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 20 करोगे, और डिवीजन में 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 है ना। कांस्टेंट को देखो किस फॉर्म में है, उसका जस्ट उल्टा करना है हमको। ठीक है, 4 में भी सेम हमारा बेटा वैसे ही है जैसे हमने 3 में किया है। सारे क्वेश्चंस ट्राई करो खुद से अच्छे से। इफ़ यू आर हैविंग डाउट तो हम उसको 6 to 7 टाइमिंग में वी विल सॉल्व इट। ओके।